Okay, so let us start. So this is the continuation of our first lecture, previous lecture, okay, which was your traffic flow characteristics. Okay, so they were basically two broad classification. What was that? Macroscopic parameter and microscopic parameter. We were learning about the macroscopic. Under the macroscopic, there were three parameters. What are those parameters? Traffic volume, okay, traffic traffic volume, traffic speed, and density. Volume we have covered. Okay, so today we will continue these three: speed and density. We will know about speed and density, and after that we will learn microscopic parameter. Okay, that means these are the corresponding microscopic parameters. For volume, the corresponding microscopic parameter is your headway, and for speed it is travel time, for density it is spacing. Okay, so we will learn about it. So let us go to the this second macroscopic parameter, which is your speed. Okay, so in your questions, in your they may ask you to write short notes on the different average speed. Okay, what are the different average speed? So there are basically two types of the average speed. What are those? That is time mean speed and your space mean speed. Okay, they will ask you to differentiate among these two type of speed also. Time mean speed, what is the difference between time mean speed and space mean speed? Or they may give you some problem to solve. Okay, they will give you one numerical and ask you to determine TMS and SMS. Okay, now before going to the details, we have to understand what do you understand by this time mean speed and space mean speed. Okay, I've already told that these are what? These are the average speed. Okay, not the individual speed. These are the average total parameter. We are talking about what? We are talking about the macro, in macro level. That means we are considering the traffic as a whole. Then what will be the average speed of the whole traffic? Okay, so there are two types: time mean speed and space mean speed, and these are the formulas. Okay, you can note down the formulas also. Now, time mean speed, how to, what do you understand by the time mean speed? Okay, it is nothing but the, suppose this is a section of a roadway. Okay, you are standing here. Okay, suppose this is, you cut a section, you are standing here, you identify one vehicle. Okay, and you collect you know the speed of that vehicle. Okay, so first vehicle speed is suppose v1. Now second vehicle will pass this section and its speed is suppose v2. Similarly, up to n observation. Okay, n number of observation you collected all the speeds. So v1, v2 till vn. Okay, now if you average this speed, suppose for 1 hour you collected, you observed, you collected the data. Okay, for 1 hour you observed that 10 vehicles has crossed this segment. Okay, crossed this segment, and you know the velocity of each vehicles also. So you know how many velocity? 10 velocities. Okay, you collected data for how many time? How much time? 1 hour. So now what is the average speed of all those observed vehicles that you have collected or that you have observed for given period of time? Okay, that is what? For 1 hour. It may be 10 minutes, it may be 15 minutes, it may be 30 minutes, or it may be 60 minutes. Okay, so with respect to time, in a given period of time, how many vehicles has crossed that section? If you collect the velocity of all those vehicles and if you average them, you will get what? You will get time mean speed. That means what? Over the time, what is the average speed of the traffic? That's why it is called time mean speed. Okay, over the time, what is the mean speed of the traffic? Okay, now then what do you understand by the space mean speed? Anyone? If time mean speed is what? It is over the time. Okay, for a given period of time, what is the average speed of the traffic?
Now what do you understand by space means speed then? Anyone? बोलो, अगर टाइम मीन स्पीड है फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तुमने जितना भी व्हीकल्स को कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट किया, उसका एवरेज स्पीड है, दैट इज योर टाइम मीन स्पीड. सी सपोज ये वाला जो बोले थे वी आई, ओके, टिल एन, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, अगर 10 व्हीकल है देयर योर एन विल बी 10 एंड समेशन ऑफ ऑल द व्हीकल्स, ऑल 10 व्हीकल्स, ओके, तो उनका एवरेज विल गिव यू टाइम मीन स्पीड. देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेस मीन स्पीड? एनीवन? मैम डिस्टेंस. Yes, over the distance, okay, over the space, we can say, rather we can say over the space. मतलब कि ये वाला एग्जांपल अगर देखोगे, देखो सी ये वाला एग्जांपल है, सपोज ये वाला स्पेस तुमने लिया है, यू हैव फिक्स द स्पेस, इन द प्रीवियस केस यू हैव फिक्स द टाइम, मतलब 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी है. नाउ इन दिस एसएमएस क्या हो जाएगा, यू आर फिक्सिंग द डिस्टेंस, और वी कैन से वी आर फिक्सिंग द स्पेस. ठीक है, सो ओवर दिस स्पेस, जितना भी व्हीकल्स यहाँ इस स्पेस के अंदर में है, विद इन दिस रोड सेक्शन, जितना भी व्हीकल्स वहां पे अभी है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, प्लीज रिमेंबर. ठीक है, एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब कि तुमने एक वीडियो लिया, अब तुमने पॉज कर दिया. ठीक है, एक सेगमेंट लिया था, ये वहां से लेकर यहाँ पर एक सेगमेंट लिया था, तुमने वीडियो से अभी पॉज कर दिया, तो उस पॉज मतलब एट दैट मोमेंट, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, सपोज ये 3 व्हीकल उसके अंदर था, उस स्पेस या उस स्ट्रेच के अंदर ये 3 व्हीकल था, तो ये 3 व्हीकल का एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 3 व्हीकल का अगर स्पीड हम एवरेज करेंगे, देन वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट एसएमएस. ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ओवर द स्पेस एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमने एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में पॉज कर दिया है, राइट, वीडियो को. और ये वाला क्या है, दिस इज ओवर द टाइम एट एन इंस्टेंट ऑफ स्पेस, मतलब इस सेगमेंट को, ये वाला स्पेस को कितना व्हीकल क्रॉस कर रहा है, 10 व्हीकल क्रॉस किया आधा घंटा में, तो उसका एवरेज कितना है. ठीक है, और वेरएज यहाँ पे क्या है, ये एवरेज तुम्हारा ओवर द स्पेस एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड दिस इज व्हाट, ओवर द टाइम, ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट एन इंस्टेंट ऑफ स्पेस. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंस है. तो फॉर्मूलाज क्या है, इसका फॉर्मूला है टीएमएस का समेशन वी आई बाई एन. ठीक है, वेरएज एसएमएस का फॉर्मूला क्या है, दिस वन. अब ये वाला डिराइव भी कर सकते हो तुम लोग, या यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, सो प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला. टीएमएस है समेशन वी आई बाई एन, एंड एसएमएस इज व्हाट, एन बाई समेशन ऑफ वी आई, 1 बाई वी आई. ओके, ये कुछ नहीं, कैसे लिया, इसका एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे. सपोज ये वाला व्हीकल फर्स्ट व्हीकल है, ठीक है, तो फर्स्ट व्हीकल तुम्हारा ये डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, डी डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, एट द टाइम कितना, टी आई टाइम में. ठीक है, तो सेकेंड वाला डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना टाइम में, T2 में. थर्ड वाला कितना में कर रहा है, सेम डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ T3. तो टोटल 3 व्हीकल का स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम. अब बोलो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑल द व्हीकल्स कितना होगा, एक व्हीकल डी टाइम कर रहा है, डी ट्रेवल कर रहा है, दूसरा भी डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तीसरा भी डी डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है. तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सब व्हीकल मिलकर, 3 व्हीकल मिलकर कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस. सपोज श्यामश्री ने भी ये डी डिस्टेंस कवर किया, शुभजीत दत्त ने भी डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, और शुभजीत विश्वास ने भी डी डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो 3 जन मिलाकर टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 3D, मतलब n नंबर ऑफ व्हीकल्स होगा तो क्या हो जाएगा, ND, राइट. तो ये टोटल डिस्टेंस क्या है, ND है. तो डिस्टेंस बाय कितना टाइम है, टोटल टाइम अब कितना लगेगा. सपोज श्यामश्री को लगा यहाँ से यहाँ पे जाने के 3 मिनट, शुभजीत को लगा 2 मिनट, शुभजीत विश्वास को लगा सपोज 5 मिनट. ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा, 3 + 2 + 5, राइट, मतलब TI प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3, राइट. अगर n नंबर ऑफ व्हीकल्स हो जाएगा तो n टाइम्स, मतलब जितना भी होगा उसका समेशन. सो टोटल यहाँ पे समेशन कर दिया टाइम को. ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम विल गिव यू एसएमएस. वही तो है. अब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या करोगे, डी को नीचे की तरफ लेकर जाओ. ओके, डी को अब तुम इसके अंदर समेशन के अंदर में डालो. डी इज व्हाट, डी इज कांस्टेंट फॉर ऑल द व्हीकल्स, राइट. तो डी यहाँ पे चला गया. नाउ TI by D is what, distance by time is V, so TI by D is what, उल्टा हो जाएगा 1 by V. तो यहाँ पे देखो 1 by V आ गया.
ठीक है. सो TMS इज नथिंग, दिस इज द एवरेज ऑफ द स्पीड, मतलब VI by N, और SMS इज N by summation 1 by VI. क्लियर है ये वाला? सो वी विल गो टू द प्रॉब्लम देन. ये वाला प्रॉब्लम है. देन प्लीज कैलकुलेट दिस TMS एंड SMS. ऐसे तुमको दे देगा, डिस्टेंस दे देगा एक स्ट्रेच का, ट्रैवल टाइम कितना टाइम लगा उसका वो डिस्टेंस कवर करने के लिए. सपोज व्हीकल 1 सेम डिस्टेंस है, 1000 डिस्टेंस ही है, जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल में दिए थे. यहाँ पे सेम है सब लोग, ठीक है. D इज सेम फॉर ऑल द व्हीकल्स, सो यहाँ पे D इज सेम, ठीक है. और ट्रैवल टाइम लेकिन अलग अलग है, क्योंकि स्पीड इज अलग, मतलब किसी किसी का मतलब हाई स्पीड से जा रहा है, कोई स्लो स्पीड से जा रहा है, तो इसीलिए तुम्हारा टाइम विल वेरी, ठीक है. तो अब बोलो तो इसका TMS क्या होगा, SMS क्या होगा. नाउ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट, फॉर्मूला में क्या चाहिए, V चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, ठीक है. और क्या चाहिए, N चाहिए. देखो यहाँ पे भी N, V चाहिए, राइट. सो V कैसे निकलेगा, N इज व्हाट, 1 2 3 4 5 6. इन दिस केस N इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 6. ओके. नाउ कैलकुलेट V कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, V1 क्या हो जाएगा, V1 क्या होगा बोलो. Ma'am, distance by time. 1000 by 1. 1000 by 18 तो, राइट. तो V निकालो पहले. V ऐसे करके देखो, V निकल आएगा फीट पर सेकेंड में. ओके. यहाँ पे अगर मीटर होगा तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. तो तुम्हारा सब V1 इतना आया, V2 इतना आया, V3 ऐसा ऐसा करके आ जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है. नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ V, ओके, एंड वी आल्सो नो द वैल्यू ऑफ N. अब TMS और SMS का ये फॉर्मूला है, तो निकालो क्या होगा TMS SMS कितना आएगा. What is the value of TMS and SMS? आ रहा है. देखो ये कितना होगा, ये वाला फर्स्ट TMS इज व्हाट, समेशन ऑफ V डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. एवरेज करना है, राइट. फर्स्ट व्हीकल का ये स्पीड है, सेकंड का ये स्पीड है, सिक्स्थ का ये स्पीड है, तो टोटल एवरेज कितना होगा, टोटल बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना व्हीकल्स है उतना से डिवाइड कर देना है. सो TMS विल बी योर, देखो 50.6 फीट पर सेकेंड आ रहा है, और SMS का फॉर्मूला में बिठा देना है, ठीक है. मतलब कुछ नहीं, 1 by 55 प्लस 1 by 50 प्लस 1 by 45 प्लस 1 by 52 ऐसा करके यहाँ पे सम कर दो नीचे, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो किससे, 6 से, ठीक है. सो वी विल गेट दिस मच. सो 50.6 TMS एंड SMS इज 50.4. क्लियर. ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है. प्लीज रेस्पॉन्ड. हेलो. है मैम. Yes मैम. ओके. So now other types of speed. Okay, तुमको MCQs they may ask you to write down the short notes. तो उसमें क्या आ जाएगा, TMS लिखना है, SMS लिखना है, ठीक है. Now others are what, spot speed एक है. spot speed मतलब at a particular moment, instantaneous speed जो होता है, okay, that is the spot speed, okay, at a specified location. दूसरा क्या है, running speed. running speed कुछ नहीं है, when your vehicle was in running motion, okay, when your vehicle was in running condition, what is the speed, ठीक है. ये एक है. और दूसरा क्या है, जर्नी स्पीड. जर्नी स्पीड का मतलब है कि when तुम्हारा टोटल जर्नी जो लगा था, ठीक है, उसमें तुम्हारा थ्रू आउट द जर्नी व्हाट वाज द स्पीड, व्हाट वाज द एवरेज स्पीड, दैट इज योर जर्नी स्पीड, ओके. लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रनिंग एंड जर्नी, मतलब यही है कि देखो जर्नी स्पीड में क्या होता है, तुम्हारा व्हीकल इट मे बी इन द मोशन, इट मे बी इन द स्टॉप कंडीशन, राइट. ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ BBIT से स्टार्ट किया तुम्हारा ऑटो एकदम बज स्टेशन तक ही पूरा एकदम रनिंग मोशन में था, राइट, रनिंग कंडीशन में था. नहीं, वो बीच बीच में स्टॉप करता है, वेयर जहाँ पे उसको पैसेंजर्स को उतारना पड़ेगा स्टॉपेज में, या जहाँ जहाँ पे जैम होता है वहां पे भी उसका स्पीड रिड्यूस होकर 0 हो जाता है, स्टॉप कंडीशन में आ जाता है, राइट. सो
जहां जहां पे ये सब मिलाकर अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे दैट विल गिव यू द जर्नी स्पीड, मतलब इंक्लूडिंग ऑल द स्टॉप्स एंड डिलेज, ठीक है। और रनिंग स्पीड क्या है, वो जो स्टॉप्स डिलेज को हटा के जितना टाइम तुम रनिंग मोशन में थे, रनिंग कंडीशन में थे, तब तुम्हारे व्हीकल का स्पीड कितना था, ठीक है ना। उसको फॉर्मूला में कैसे निकालोगे, रनिंग स्पीड जर्नी स्पीड, कुछ नहीं, यू नो द डिस्टेंस फ्रॉम बीबीआईटी टू बजबज, टोटल डिस्टेंस तुमको पता है, उतना डिस्टेंस तुमको कवर करना है, ओके, दैट डिस्टेंस इज फिक्स्ड इन बोथ द केस। बट रनिंग में क्या करना है, रनिंग में सपोज तुमको तुम्हारा जर्नी टाइम सपोज इधर से स्टार्ट किया 5 बजे, तुम वहां पे पहुंचे बजबज स्टेशन में पहुंचे 6 बजे, राइट, 6 बजे, तो 5 PM से 6 PM कितना लग रहा है, 1 घंटा, तुम्हारा जर्नी टाइम 1 घंटा लग रहा है। अब उसी टाइम के अंदर तुम्हारा गाड़ी रुका हुआ भी था, मोशन में तो था ही, राइट, और बीच बीच में रुका हुआ भी था, तो दैट टाइम अगर तुम यहाँ पे डिस्टेंस बाय वो वाला टाइम यूज करोगे देन दैट विल गिव यू द जर्नी स्पीड, मतलब यहाँ पे तुम 1 घंटा पूरा लिया, मतलब तुम यहाँ से टाइम स्टार्ट किए थे 5 बजे निकले, एकदम वहां पे पहुंचे 6 बजे, मतलब उसके बीच में तुम्हारा गाड़ी स्टॉप कंडीशन में भी था, मोशन में भी था, वॉट एवर, राइट, टोटल जर्नी टाइम कितना लगा, 1 आवर। सो द डिस्टेंस बाय टाइम, दैट टाइम विल गिव यू जर्नी स्पीड। अब वो जो 1 घंटा था, 1 घंटा में तुम्हारा 1 घंटा ही गाड़ी मोशन में नहीं था, राइट, उसमें से शायद 15 मिनट्स तुमको रुकना पड़ा था, गाड़ी वॉज नॉट इन द मोशन, इट वॉज इन द स्टॉप कंडीशन, ठीक है, मतलब जगह जगह पर जितना टाइम तुम स्टॉप थे तुम कैलकुलेट किए, ठीक है, तुम नोट डाउन किए, नाउ यू सम अप, सपोज वो टोटल टाइम लगा 15 मिनट तुम रुके थे, जर्नी टाइम है 1 घंटा, लेकिन उसमें से 15 मिनट योर व्हीकल वाज इन स्टॉप कंडीशन, ठीक है, तो एक्चुअली में रनिंग में कितना टाइम लगा, फिर रनिंग तुम्हारा कितना टाइम वाज योर ऑटो वाज इन मोशन, 1 घंटा 60 मिनट है टोटल टाइम, उसमें से 15 मिनट्स था तुम्हारा गाड़ी रुका था, मतलब हर जगह सब जगह पे रुका था, उसका सब सम अप करके ऐड करके देख रहे हो कि 15 मिनट्स तुम्हारा गाड़ी रुका हुआ था थ्रू आउट द जर्नी, तो फिर कितना टाइम तुम्हारा व्हीकल वाज इन मोशन, आउट ऑफ 60 मिनट, 60 मिनट्स में 15 मिनट्स तुम्हारा क्या था, रुका हुआ था, स्टॉप्स था, डिलेज था, कितना टाइम तुम्हारा चला था गाड़ी, 45 मिनट्स, 45 मिनट्स, राइट, तो वो वाला 45 यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये जो टाइम है दैट टाइम विल बी 45 मिनट्स, ओके, तो ये जो टोटल डिस्टेंस दोनों में सेम है, लेकिन इसमें 45 मिनट्स है, इसमें 60 मिनट्स है, ओके, तो ये वाला जो फॉर्मूला है, दिस इज योर रनिंग स्पीड एंड दिस इज योर जर्नी स्पीड, क्लियर, आई थिंक क्लियर, राइट। अब दूसरा क्या पैरामीटर है, सॉरी ये वाला होगा पैरामीटर 3, ओके, डेंसिटी होगा, तो स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, नाउ लेट अस गो टू द ट्रैफिक डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या है, देयर इज अ 1 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ रोड, विद इन दैट 1 किलोमीटर ऑफ रोड व्हाट इज द व्हीकल्स, मतलब कितना व्हीकल्स वहां पे स्टैंड था, ठीक है, एक के ऊपर एक के पीछे एक वैसा कितना व्हीकल्स 1 किलोमीटर स्ट्रेच में है, ओके, दैट विल गिव यू योर, सपोज अगर हम बोलेंगे ऐसा एक रास्ता है, उसमें से 1 किलोमीटर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, तो एक व्हीकल, ठीक है, तो कितना सारा व्हीकल्स वाज इन दैट विद इन दैट 1 किलोमीटर ऑफ स्ट्रेच, ओके, दैट विल गिव यू योर डेंसिटी, दैट इज number of vehicles per kilometer, so unit will be what, vehicles per kilometer, okay, that is the traffic density। अब जितना ज्यादा vehicles 1 किलोमीटर के अंदर में रहेगा तो मतलब that is more dense, तो उसका ट्रैफिक डेंसिटी ज्यादा है, मोर डेंस ट्रैफिक कंडीशन, ठीक है, और जितना इन दोनों के बीच का गैप ज्यादा रहेगा मतलब ये लोग मतलब कम नंबर ऑफ व्हीकल्स है। अब बोलो इसमें से और इसमें से कौन सा वाला तुम्हारा लेस डेंस है, ये वाला कि ये वाला, विच वन इज मोर डेंस, ऊपर का नीचे का, टॉप व्यू से देख रहे हो, ओके, टॉप व्यू से देख रहे हो तुम लोग, ये सब व्हीकल्स है, गाड़ी है, सपोज ऑटो है, सब लोग इस तरफ जा रहे हैं, ओके, और ये वाला इस तरफ से आ रहा है, तो बोलो इस वाले लेन का ट्रैफिक डेंसिटी ज्यादा है ना, इस वाले लेन का डेंसिटी ज्यादा है, ये फर्स्ट लेन है ये सेकंड लेन है, कौन सा लेन का ज्यादा है डेंसिटी, ऊपरेरটা বেশি, हाँ ऊपर का बेसिक, क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स पर किलोमीटर इज मोर, ठीक है, तो डेंसिटी इज मोर, ठीक है। अब देखो
इस वाले केस में स्पेसिंग किसका ज्यादा लग रहा है तुमको, फर्स्ट में या सेकेंड में? स्पेसिंग का मतलब है तुम्हारा इन दोनों के बीच का गैप, ठीक है, मतलब इसका फ्रंट एक्सेल से फ्रंट एक्सेल के बीच का डिस्टेंस इज नोन एज स्पेसिंग। तब बोलो इन फर्स्ट लेन में स्पेसिंग ज्यादा है कि कम है कंपेयर टू द सेकेंड? सेकंड वन। सेकेंड में ज्यादा है, राइट, सेकेंड में स्पेसिंग इज ज्यादा, ठीक है, लेकिन वहां पे डेंसिटी इज व्हाट, लेस, सो मोर स्पेसिंग लेस विल बी द डेंसिटी, ओके, लेस स्पेसिंग मोर विल बी द डेंसिटी, मतलब वाइस वर्सा, ठीक है। सो ट्रैफिक डेंसिटी का माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर क्या था, स्पेसिंग था, ओके, और इसको हम लोग कैसे, इस ट्रैफिक डेंसिटी को हम के से डिनोट करते हैं, ओके, सो इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिंग, ठीक है, स्पेसिंग ज्यादा मतलब वेलोसिटी डेंसिटी विल बी लेस, ये रिमेंबर करना है, ओके। नाउ अब हम लोग डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे, ओके, फॉर ऑल दिस कंडीशन, ये जो कुछ भी हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम ये सब कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज फॉर द अनइंटरप्टेड, मतलब कोई बाहर से, मतलब जो ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल ऐसा नहीं रहेगा उस वाले स्ट्रेच में, ओके, दैट इज कॉल्ड अनइंटरप्टेड, व्हेन योर फ्लो इज अनइंटरप्टेड, ओके। और सिंगल लेन के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे, मतलब नो पासिंग, नो अपोजिट ट्रैफिक, नो इंटरसेक्शन, कुछ भी ऐसा इंटरप्शन नहीं आएगा, ठीक है, उस केस के लिए वी आर कंसिडरिंग। तो ये वाला है तुम्हारा स्पेस डिस्टेंस, एक कर्व हम लोग बोल सकते हैं, स्पेस डिस्टेंस कर्व। जनरली हम लोग क्या पढ़े थे फ्रॉम आवर बेसिक स्कूल लेवल, ये एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का एक रिलेशन है विच इज पॉजिटिव, मतलब क्या बोलते हैं उसके साथ तुम्हारा टाइम के साथ डिस्टेंस भी बढ़ेगा एंड इट इज ऐसा स्ट्रेट रहता है, ठीक है, लेकिन हम लोग का ऐसा जनरली नहीं रहता है, क्योंकि स्टॉप डिले जाता है, तो अगर ये कंटिन्यू मोशन होता तो ये बिना रुके अगर चलते रहते तो ये पूरा स्ट्रेट होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच बीच में रुक जा रहा है, देखो टाइम लैप्स हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस यहीं का यहीं अटक गया, ठीक है, मतलब यहाँ से ये ऊपर नहीं जा रहा है, देखो यहाँ पे टाइम यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे पहुंचा, लेकिन डिस्टेंस इज समवेयर हियर ओनली, ठीक है, अब यहाँ पे जाके देखो पूरा डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है डिस्टेंस, हम लोग जा ही नहीं रहे हैं, वेरस टाइम इस तरफ जा रहा है, तो ये वाला किस केस में आता है, ये वाला स्टॉप कंडीशन में, मतलब टाइम तो चला जा रहा है लेकिन हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि हम लोग का व्हीकल इज इट स्टॉप कंडीशन, तो इसीलिए ऐसा हो जाता है, ओके। तो एंड द स्लोप विल गिव यू व्हाट, स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम का स्लोप क्या है, dy by dx, dy is distance and dx is time, तो dy by dx is nothing but the speed, ओके। तो ये वाला ट्रैजेक्टरी, ये एक्चुअली क्या है, ये दिस इज द ट्रैजेक्टरी, मतलब तुम्हारा व्हीकल का पाथ है, ये कैसे मूव कर रहा है इसका पाथ है, ठीक है, तो इसका जो भी स्लोप है, देखो स्लोप वेरी कर रहा है, हर जगह वेरी कर रहा है, मतलब स्पीड भी वेरी कर रहा है, यहाँ पे एक स्पीड से जा रहा था, अब यहाँ पे उसको रुक गया, स्लोली इसका वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है, स्लोप रिड्यूस हो रहा है मतलब वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, करते अब फिर से बढ़ गया, मतलब वो अब फिर से स्टार्ट कर दिया, ओके। तो दीज आर द डिफरेंट, अब ये दूसरा व्हीकल का है ट्रैजेक्टरी, ये तीसरा व्हीकल का, ऐसा डिफरेंट व्हीकल्स का डिफरेंट ट्रैजेक्टरीज है, ठीक है, सो दीज आर द ट्रैजेक्टरी ऑफ द व्हीकल, ओके। अब इस ट्रैजेक्टरी को अगर हम हॉरिजॉन्टली काट देंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक स्लाइस ले लेंगे, कोई भी एक, यहाँ पे क्या कर दिया, वी हैव फिक्स द डिस्टेंस, मतलब ये लाइन क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, मतलब टाइम डिस्टेंस इज फिक्स्ड, देखो यहाँ पे अगर ये 10 किलोमीटर है तो यहाँ पे भी 10 किलोमीटर, यहाँ पे भी 10 किलोमीटर, सब में 10 किलोमीटर है, ठीक है, सो डिस्टेंस इज फिक्स्ड, ओके, तो मतलब एक रास्ते पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, इसका मतलब, ठीक है। अब देखो उसमें क्या जा रहा है, क्या जा रहा है तुम्हारा, हर एक ट्रैजेक्टरी अपना अपना क्रॉस कर रहा है, राइट, मतलब एक व्हीकल उसी लाइन को क्रॉस कर रहा है, फिर दूसरा व्हीकल आफ्टर सर्टेन टाइम उस लाइन को क्रॉस कर रहा है, नाउ थर्ड व्हीकल उस लाइन को कब क्रॉस कर रहा है, देखो इसका मतलब ये है, देखो सपोज दिस इज द फर्स्ट व्हीकल, तो फर्स्ट व्हीकल कब क्रॉस किया, इस टाइम में क्रॉस किया, ठीक है, सेकेंड व्हीकल कब क्रॉस किया, इस टाइम में क्रॉस किया, ठीक है, थर्ड व्हीकल कब क्रॉस किया, इस टाइम में आके वो क्रॉस किया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक रास्ता है, ठीक है, यहाँ से व्हीकल्स जा रहा है, तो फर्स्ट व्हीकल जब क्रॉस करेगा उसका टाइम ये है, इसके पीछे और एक व्हीकल अगर आ रहा होगा तो सेकेंड व्हीकल कब क्रॉस करेगा, इस टाइम में, ठीक है, और थर्ड व्हीकल पीछे से और एक व्हीकल आ रहा है वो कब क्रॉस करेगा, इस टाइम में,
ठीक है। सो तो अब बोलो इन दोनों के बीच का जो भी टाइम गैप है, व्हाट इज दैट? उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक व्हीकल और उसका सक्सेसिव जो पीछे वाला व्हीकल है, दोनों कितना गैप के अंतर में ये लाइन को क्रॉस कर रहा है, विद इन विच टाइम इंटरवल दे आर क्रॉसिंग दिस लाइन। ठीक है, तो ये जो ट्रैजेक्टरी में से अगर ये हॉरिजॉन्टल हम लाइन निकाल लेंगे, दैट विल गिव यू द हेडवे टाइम, टाइम हेडवे जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, और एक है कि देखो ये बोले थे हम, क्या बोले थे, फॉर सपोज 1 घंटा, अगर ये पूरा 1 आवर टाइम है तो मतलब यहाँ तक जाके 1 घंटा हुआ है। ठीक है, तो 1 घंटा तक कितना व्हीकल्स इस लाइन को क्रॉस किया, काउंट करो। सपोज योर 1 आवर विल बी समवेयर हियर। ठीक है, मतलब तुम यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे 0 मिनट, ठीक है, करते करते यहाँ पे जाके तुम्हारा 60 मिनट हो रहा है। ओके, टाइम, राइट। तो देखो 1 घंटे में कितना सारा व्हीकल ये लाइन को क्रॉस कर रहा है, काउंट करो तो। ये एक हो गया, ठीक है, ये सेकेंड 1 2, ठीक है, 3 फिर 4 5 और 5 तक ही जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गिविंग व्हाट, दीज आर गिविंग यू द नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट हैज क्रॉस्ड द सेगमेंट। ओके, विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे गिवन पीरियड ऑफ टाइम कितना है, 1 घंटा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम किया, 1 घंटा। तो 1 घंटे में अगर तुमको बोला गया है कि यूजिंग दिस ग्राफ कैलकुलेट व्हाट इज द नंबर ऑफ द व्हीकल दैट हैज क्रॉस दिस सेक्शन विद इन 60 मिनट्स, तो हम लोग काउंट करेंगे कौन सा, ये जो ट्रैजेक्टरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, करने के बाद उसमें देखेंगे कितना सारा ट्रैजेक्टरी पॉइंट्स इस लाइन को इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ पे एक इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। सो तुम्हारा विद इन 60 मिनट टोटल नंबर ऑफ व्हीकल दैट हैव क्रॉस्ड इज व्हाट, 5। ओके, 5 व्हीकल्स। तो हम लोग बोले थे वॉल्यूम किसको बोलते हैं, पर आवर या ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम हाउ मेनी व्हीकल्स हैव क्रॉस्ड अ सेक्शन। ओके, सो यही हमको काउंट देगा, दैट मीन्स दिस इज द नथिंग बट द ट्रैफिक वॉल्यूम। ओके, तो देखो, सो द नंबर ऑफ द ट्रैजेक्टरी क्रॉसिंग दिस लाइन इज द नंबर ऑफ द व्हीकल्स पासिंग अ फिक्स्ड पॉइंट। ओके, एंड दैट विल गिव यू द वॉल्यूम। तो ये हम बोल रहे थे। ओके, दूसरा क्या है, अगर हम वर्टिकली अगर क्रॉस करेंगे, ठीक है, वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ कर देंगे, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना मतलब क्या फिक्स किया हम लोगों ने, यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स किया ना टाइम फिक्स किया। व्हाट वी हैव फिक्स्ड इन दिस केस, हम लोगों ने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था, मतलब वी हैव फिक्स्ड द डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब व्हाट वी आर फिक्सिंग, वी आर फिक्सिंग द टाइम, राइट। एट इंस्टेंट ऑफ टाइम हम लोग बोले थे, सपोज ये कितना है यहाँ पे, सपोज 10 बजे, 10 बजे का एक लाइन हम ड्रॉ कर दिया पूरा, मतलब 10 बजे का एक लाइन हम लोग टाइम फिक्स कर दिया, इंस्टेंट ऑफ टाइम हम फिक्स कर दिया। अब इसमें से जितना नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉस करेगा, मतलब जितना ट्रैजेक्टरी इस लाइन को क्रॉस करेगा, अगर हम लोग ऐड कर देंगे, देन व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे देखो कहाँ से लेकर, सपोज इस डिस्टेंस से लेकर इस डिस्टेंस तक। ओके, फ्रॉम दिस डिस्टेंस टू दिस डिस्टेंस। ओके, 1 किलोमीटर है, सपोज ये 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ठीक है, अब 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम हाउ मेनी, इफ वी काउंट द नंबर ऑफ ट्रैजेक्टरीज व्हिच हैव क्रॉस्ड दिस लाइन, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी ट्रैजेक्टरी क्रॉस करेगा, जो भी नंबर मिलेगा, व्हाट विल बी दैट नंबर, क्या होगा, वो ट्रैफिक वॉल्यूम होगा ना कि ट्रैफिक डेंसिटी होगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, मतलब कि 5 व्हीकल्स आर लाइंग एट द डिस्टेंस ऑफ कितना, स्ट्रेच ऑफ
1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ रोड में कितना एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, सपोज हम बोले थे 10 AM, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस टाइम पे 1 किलोमीटर रास्ते पर कितना सारा व्हीकल्स है, 1 2 3 4 5, तो वो 5 क्या है, व्हाट इज दैट वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेंसिटी मैम। यस, डेंसिटी, राइट। मतलब ये क्या है, इतना 5 व्हीकल्स पर किलोमीटर एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम उस जगह पर है, मतलब क्या है, दैट इज द ट्रैफिक डेंसिटी, मतलब इस वाले से हमको ट्रैफिक डेंसिटी मिलेगा। देन व्हाट इज दिस गैप, देन इस गैप को क्या बोलेंगे, देन ये जो एक व्हीकल से लेकर दूसरा व्हीकल का ये जो गैप है, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्चुअली द डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस वाला है ना, ये वाला गैप इनको डिस्टेंस है। नाउ व्हाट इज दिस गैप इज नोन एज, क्या बोले थे हम, दो व्हीकल के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, सक्सेसिव 2 व्हीकल्स के गैप को स्पेसिंग बोलते हैं, राइट। सो दीज आर योर स्पेसिंग, ठीक है, मतलब कि ये जो गैप है एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल के बीच का जो भी गैप है उसको बोलते हैं स्पेसिंग। मतलब ऐसा कट करने से हमको क्या मिलेगा, इफ वी काउंट द ट्रेजेक्टरीज दैट विल क्रॉस द सेगमेंट, ओके, दैट विल गिव यू डेंसिटी एंड द गैप बिटवीन दिस टू ट्रेजेक्टरी विल गिव यू द स्पेसिंग। वैसे वहां पे क्या था, वॉल्यूम था, और दैट विल स्पेस जो दोनों के बीच का गैप जो है उसको टाइम हेडवे बोलते हैं, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर ऑफ वॉल्यूम, ओके। तो देखो यहाँ पे भी बोला, द नंबर ऑफ ट्रैजेक्टरी क्रॉसिंग द लाइन इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड एट 1 इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हिच इज द डेंसिटी एंड यूनिट इज व्हाट, व्हीकल पर किलोमीटर, ओके। अब बोले थे टाइम हेडवे, वही बोले थे टाइम हेडवे, ठीक है। टाइम हेडवे का मतलब है कि सपोज एक लाइन है, सपोज ये रास्ता है, ठीक है, एक व्हीकल जा रहा है, दूसरा व्हीकल सामने की तरफ है, ओके। इन दोनों के बीच का मतलब इसका फ्रंट से इसका बैक, इसको बोलते हैं गैप और क्लियरेंस, ओके। इसको बोलते हैं, दिस इज नॉट स्पेसिंग, दिस इज गैप और क्लियरेंस। स्पेसिंग इज व्हाट, एक फिक्स्ड पॉइंट को रेफरेंस पकड़ के हम उन दोनों के बीच का गैप लेंगे। मतलब देखो इसका भी रेफरेंस पॉइंट कौन है, फ्रंट है, इसका भी फ्रंट बम्पर, तो फ्रंट और फ्रंट के बीच का जो भी गैप है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर लेंगे दैट विल बी द हेडवे, टाइम हेडवे बोलते हैं। और इफ वी कंसिडर दिस गैप विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इट विल गिव यू टाइम स्पेस हेडवे और स्पेसिंग, ओके। इसको बोलते हैं हेडवे एंड स्पेसिंग। हेडवे है वॉल्यूम का माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर और स्पेसिंग है तुम्हारा डेंसिटी का माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, ओके। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हेडवे, टाइम हेडवे एंड वॉल्यूम? स्पेसिंग और डेंसिटी का तो हम बोले थे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्पेसिंग जितना ज्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस तुम्हारा डेंसिटी उतना ही कम होगा, ठीक है। अब हेडवे का मतलब क्या है, हेडवे है सपोज हम बोले थे कि एक व्हीकल सपोज यहां से जा रहा है, ठीक है, सपोज ये रास्ता है, ठीक है, यू आर स्टैंडिंग हियर, एक लाइन ड्रॉ कर दी है तुमने, ठीक है, एक व्हीकल यहाँ पे क्रॉस किया इसको, ठीक है, सपोज दिस इज द फर्स्ट व्हीकल सपोज क्रॉस किया 10 बजे, ठीक है। फिर सेम रास्ते पर ही, यही सेम रास्ता यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, सेकेंड व्हीकल आके इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, क्रॉस कर रहा है, सेकेंड व्हीकल आके इसको क्रॉस कर रहा है सपोज 10:02, मतलब इसके ये 10 बजे क्रॉस किया, सेकेंड वाला उसके 2 सेकेंड के बाद क्रॉस किया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 सेकेंड है, ठीक है। तो 2 सेकेंड मतलब क्या है, दैट इज द टाइम हेडवे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे, गैप है, दोनों का ही गैप है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, इसीलिए उसको बोलते हैं टाइम हेडवे। अब स्पेसिंग क्या है, स्पेसिंग कुछ नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर हम गैप मेंटेन करेंगे, गैप लेंगे, दैट इज द स्पेसिंग, ओके। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब बोलो ये टाइम हेडवे के साथ फ्लो क्या होगा, बोलो। फ्लो का मतलब क्या है, पानी बह रहा है, वैसे ट्रैफिक भी बह रहा है, राइट। देन इफ द टाइम हेडवे बहुत ज्यादा है, मतलब एक व्हीकल क्रॉस किया, उसके कई टाइम के बाद, बहुत देर के बाद दूसरा व्हीकल क्रॉस किया, तो वो फ्लो क्या है, दैट फ्लो इज मतलब ज्यादा फ्लो है या लेस फ्लो है वो? मैम लेस हो रहे,
लेस होगा। क्यों बोलो? वॉल्यूम मतलब क्या है? नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग द सेगमेंट एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तुम्हारा टाइम फिक्स्ड है, मतलब तुम 1 घंटे के लिए तुम वहां पे रुकोगे। ठीक है, एक व्हीकल आया, उसके 10 मिनट बाद दूसरा व्हीकल आया। ठीक है, तो वैसा करते करते सिर्फ 3 व्हीकल काउंट किया तुम्हें, पूरा पूरा 1 घंटा में सिर्फ 3 व्हीकल काउंट किया, क्योंकि उन लोग के बीच का टाइम हेड पे बहुत ज्यादा है। तो वॉल्यूम कितना है? 3 व्हीकल्स पर आवर, वो है। ठीक है, अब दूसरा केस ले लो, एकदम मॉर्निंग पीक आवर में अगर तुम खड़े रहोगे 1 घंटे के लिए। ठीक है, एक व्हीकल आया, उसके तुरंत 2 सेकंड बाद दूसरा व्हीकल आया, फिर उसके तुरंत 3 सेकंड बाद तीसरा व्हीकल आया। तो 1 घंटे में तुम लोग का काउंट कितना हो जाएगा? सपोज 100 व्हीकल्स तुम लोगों ने काउंट कर दिया सेकेंड केस में। तो ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है? 100 व्हीकल्स पर आवर। तो फर्स्ट केस में क्या था? 3 व्हीकल्स पर आवर, क्योंकि तुम्हारा टाइम हेड में बहुत ज्यादा बहुत लेट लेट करके आ रहा था। और सेकेंड केस में क्या था? बहुत तुरंत तुरंत आ रहा था, इसलिए क्या है? वॉल्यूम भी बढ़ गया, मतलब फ्लो भी बढ़ गया। सो वी कैन से दैट flow, which is denoted by q, is also indirectly proportional to time headway, which is h. Okay, और similarly density भी indirectly proportional to space headway, which is spacing, और s से denote करते हैं। I think this is clear. हाँ मैम। ओके, तो अब जाते हैं तुम लोग फॉर्मूला में। ठीक है, फॉर्मूला था ये वाला, देखो। तो हेडवे हम लोग क्या बोले थे? Q इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो Q को ऊपर इस तरफ भेज दिया, H को इस तरफ भेज दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से, ये गलत है। ओके, दिस विल बी Q इज 3600 बाय H, ये फॉर्मूला गलत है। Q हम लोग लेते कितना है? Q इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। ठीक है, अगर इसको ये प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल साइन करेंगे तो एक कांस्टेंट रहेगा। ओके, एंड दैट कांस्टेंट इज योर 3600 H। यहाँ से ये वाला फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ओके, सो Q इज 3600 बाय H। क्यों? बिकॉज H वॉज इन सेकेंड, Q हम लोग कितना बोले थे? पर आवर, तो उसको सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 आया है। ओके, तो ये वाला है फॉर्मूला। तो देखो, स्पीड का तो तुम्हारा एवरेज स्पीड हो जाएगा, टाइम हेडवे फ्लो के साथ हो जाएगा। ठीक है, स्पेस इज योर डेंसिटी के साथ रिलेटेड है। सो एंड नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर Q, K एंड U? Q इज इक्वल्स टू क्या था? 3600 बाय H था। K इज इक्वल्स टू क्या था? Q इज इक्वल्स टू था तुम्हारा 3600 बाय H। ओके, एंड K हम लोग बोले थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। ठीक है, और उसको हम लोग इक्वल साइन करने के लिए एक कांस्टेंट दे देंगे, विच इज 1000 बाय S। 1000 बाय S क्यों? S वाज इन मीटर एंड K क्या था? व्हीकल पर किलोमीटर था, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1000 कर दिया। यू नो द वैल्यू ऑफ Q, यू नो द वैल्यू ऑफ K, you can easily calculate the value of U using this equation, and this is your fundamental traffic flow equation। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ ट्रैफिक फ्लो थ्योरी, where Q is equals to K by K into U। U is what? Speed, mean speed। ओके, अच्छा, तो फिर एक प्रॉब्लम करते हैं। ओके, तो दिस इज द प्रॉब्लम। क्या दिया देखो, ट्रैफिक इन एंड इंटरसेट एट दिस मच टाइम इज ऑब्जर्व टू बी टू हैव स्पेसिंग ऑफ कितना? 25 मीटर। स्पेसिंग दिया है 25 मीटर। ओके, एंड एवरेज हेडवे ऑफ कितना? 3 सेकेंड। ओके, सो एस्टिमेट वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, ये निकाल पाओगे? स्पेसिंग दिया है, हेडवे दिया है, अब निकालो। क्या स्पेसिंग से क्या आ जाएगा? डेंसिटी। हेडवे से क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। इफ यू नो वॉल्यूम, डेंसिटी, वी कैन इजीली कैलकुलेट स्पीड। ओके, सो कैलकुलेट करो तो कितना आएगा? जल्दी, 4 मिनट बाकी है, कर लो। कत आसबे?
ठीक है, टॉपिक 2 आज कवर नहीं होगा, नेक्स्ट डे हम कर देंगे, ठीक है, ट्रैफिक साइंस एंड मार्किंग्स का। तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो जल्दी से। আমাকে बोलो तो स्पेसिंग इज 25 मीटर, तो स्पेसिंग से क्या निकल आएगा तुम्हारा, स्पेसिंग से आएगा डेंसिटी। नाउ डेंसिटी इज इक्वल्स टू कितना था, 1000 बाय स्पेसिंग। ओके, दिया है क्या, हेडवे दिया है, स्पेसिंग दिया है, राइट। कैलकुलेट फर्स्ट फ्लो, so this is the formula of flow. What is the value of q? बोलो सिमोन सेमश्री, q कत मैम আসছে? 1200 मैम 1200 हाँ 1200 मैम 1200 1200 1200 हाँ, k का ये है वैल्यू, ओके, 1000 बाई s, एंड योर q का कैसे आ जाएगा, एंड दिस इज द रिलेशन, फंडामेंटल रिलेशन, तो यहाँ से u का वैल्यू निकालो। सो q का आएगा तुम्हारा 1200 व्हीकल्स पर आवर पर लेन, ठीक है। k का आएगा तुम्हारा 40 व्हीकल्स 40 पर, আসবে। हाँ किलोमीटर, यूनिट देखो, यूनिट याद रखना है, ओके। फ्लो, फ्लो मतलब क्या है, व्हीकल्स पर आवर, नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग अ सेक्शन एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम, सो पर आवर। डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स एट अ गिवन डिस्टेंस, मतलब व्हीकल पर किलोमीटर, ओके। और हम लोग बोले थे ये सिंगल लेन के लिए पकड़ेंगे, तो इसलिए पर लेन दिया है, एंड यू विल गिव यू 30 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ रहा है सबका, yes হ্যাঁ ma'am मैम। ओके। सो इन दिस वे दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट ये जो, ठीक है, ट्रैफिक फ्लो और ट्रैफिक डेंसिटी, ठीक है। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। ওই 1200 ব্যাপারটা বলুন না একটু हाँ हाँ बोलो बोलो। 1200টা কি করে হলো 3600 बाई মানে সেকেন্ডে থাকলে হয়ে যাবে 3600 बाई h, दिस इज अ फॉर्मूला, Okay. h इज गिवन 3 सेकेंड, राइट। अब देखो इसका है किलोमीटर पर आवर है ना, व्हीकल पर आवर है, एंड h इज इन सेकेंड, तो इसीलिए ये 3600 टर्म आया है, मतलब सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करके ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया है, ओके। एंड s इज इन मीटर, और k का यूनिट क्या था, व्हीकल पर किलोमीटर, तो इसलिए 1000 यहाँ पे आया है, s को किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, एंड यूजिंग दिस फंडामेंटल इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट u, ओके। ওকে ম্যাম Okay, then wait. কে কি রকম মার্কস পেয়েছে, কে 4 পেয়েছে, সুদীপ্ত নাগ, নাজিস মল্লিক জাস্ট এসেছে। ঠিক আছে তাহলে তোমরা আসতে ম্যাম ওটা পারো। কি অ্যাটেন্ডেন্সের মার্কস ছিল? অ্যাটেন্ডেন্স এটা অটোমেটিক্যালি আসছে মার্কস, ঠিক আছে, যতবার আমি নিয়েছি সেই হিসাবে।